Friends, welcome to my channel, Maths Guru Oja. Today we are going to discuss about algebraic identities. As we know that this topic is essential for each and every competitive examinations like bank, railway or any teacher's TET examination also, that means. So let's start. Today we will discuss 1-2 identities, and based on that identities we will do certain sums. So as we know that the first identity is a plus b whole square, that is equal to a square plus 2ab plus b square. Now how this identity can be derived? So to derive this identity we should know how to multiply two algebraic expression. So I have taken a plus b whole square. A square means that number I have to write 2 times. If 2 square is there, that means 2 into 2. This is the meaning. So similarly a plus b whole square, I have written a plus b into a plus b. Now how we can multiply? We can write any bracket 2 times. Say I have written a plus b, and then with the first bracket I have to multiply a, and with the second bracket I have to multiply b. So what I will get? A into a is a square, as we know. Power we have to add, that is this is the formula which we can see here. A to the power m into a to the power n is there, that is base is same. So just we have to add the power, that is a to the power m plus n. So if suppose here a to the power 2 is there into a to the power 3 is there, so if I will add the power I will get a to the power 5. So here a into a is a square, a into b is ab plus b into b is a into b is again ab, or ba is same thing, plus b into b is what? B square. So this AB and AB is like term, we can add and we will get a square plus 2ab plus b square. So this is the identities. This is the identity, this is the way we can derive it. And now how we can use this one? So let's see one sum based on this identity, that 3x plus 4y whole square we have to find. So what should I do? Here I can remember in a very simple way that cat plus dog whole square is equal to cat square plus 2 into cat into dog plus dog whole square. So ऐसा करने से हम लोग इजीली फॉर्मूला को मेमोराइज रख सकते हैं. So इसको अगर यूज करें हम लोग, that is this is our first term. So I have to write 3x whole square, जो भी फर्स्ट टर्म हो उसका स्क्वायर लिखना है, प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 विल कम, आइडेंटिटीज के हिसाब से 2 लिखना है, देन ये फर्स्ट टर्म. So what is our first term? 3x into second term यहाँ पे क्या है? 4y plus second term whole square, that is 4y whole square. So what I will get here? This will be 3 का स्क्वायर 9 होता है, plus 3 to the 6, 6 4 जा 24 हो गया, 24xy, and 4 का स्क्वायर 16 and y square is y square. So this is the way we can expand by using these identities. तो ये सम एग्जाम में देते हैं और आसानी से इसको किया जा सकता है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट सम है जो नंबर बेस्ड सम होगा, जहां पे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन नंबर. से इफ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 105 होल स्क्वायर, व्हाट शुड आई डू? सो 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर. सो अगेन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा इसके लिए. सो क्या लिख सकते हैं इसे? a का स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट टर्म जो भी हो उसका स्क्वायर. सो यार फर्स्ट टर्म इज योर 100, इसको ए सोचिए और इसको सोचिए बी है ये. सो 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 100 इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर. अब अगर हम लोग इसको एक्सपांड करके प्लस कर दे तो वी विल गेट द आंसर. 1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड इफ 2 zeros आर देयर वी हैव टू राइट 4 zeros. देन दिस वन 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू 100 इज 1000 प्लस 5 स्क्वायर इज 25. दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 11025. दिस इज द वे वी कैन एक्सपांड. तो इस तरह का सम्स एग्जाम में आता है जहां हमें सर्टेन वैल्यू का योर से फाइंड करने देता है और विदाउट यूजिंग योर मल्टीप्लिकेशन. अब अगर a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये फॉर्मूला स्लाइड चेंज हो जाएगा. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा. एंड इन द सेम वे जैसे मैंने पहले दिखाया था उसी तरह से इसको भी डिराइव कर सकते हैं हम लोग. तो इसे हम आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा. चलिए इस पे भी बेसिक सम देखते हैं. अगर यहाँ माइनस आ जाए तो क्या लिखेंगे? सेम
पहला टर्म का होल स्क्वायर दैट इज 3x होल स्क्वायर माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 लिखना है इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 3x इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 4y प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर दैट इज 4y का होल स्क्वायर, और इसको एक्सपांड करके हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा. सो 3x होल स्क्वायर इज व्हाट 9x स्क्वायर, 3 2 6, 6 4 24xy प्लस 4y होल स्क्वायर इज 16y स्क्वायर. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं. अभी मैंने प्लस में आपको दिखाया एक नंबर का वैल्यू, इसी तरह से हम लोग को माइनस में भी वैल्यू दिया जा सकता है एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज इस वैल्यू. सो 99 इन प्लेस ऑफ 99 व्हाट आई कैन राइट 100 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 1 इज 99 इटसेल्फ. तो अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया. व्हाट शुड आई राइट 100 होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूला से 2 लिखा इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 100 इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 1 प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. सो इसको कैलकुलेट करके हम लोग 99 का स्क्वायर निकाल सकते हैं. सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस टू आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर. चलिए अब एक सम देखते हैं जो a प्लस बी होल स्क्वायर से किया जा सकता है. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 6 find the value of x square plus 1 by x square and x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. So here what is given? X plus 1 by x is equal to 6. So simply we have to do a squaring both side. Let's do a squaring both side. यहाँ पे a plus b whole square formula लगाइए. x है so we have to write x whole square according to formula 2 into first term that is x इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 1 बाई एक्स. यहाँ फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म 1 बाई एक्स है प्लस क्या होगा सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर एज वी नो इट इज 36. सो हियर दिस x विल कैंसल आउट. सो व्हाट वी विल गेट x होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस दिस इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस 2 है इफ आई विल टेक टू राइट साइड ये माइनस हो जाएगा. सो 36 माइनस 2 that is equal to x square plus 1 by x square equal to 34. Now further I have to find x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. So for that purpose again I have to do a squaring. अगर फिर से मैं स्क्वायर कर दूं तो I will get the required value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. So I hope आप लोग इसमें एक्सपांड कर पाएंगे. आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कोई प्रॉब्लम अगर फेस हो यहाँ पे तो. So this is the way we can do प्रैक्टिकल बेस्ड सम्स बेस्ड ऑन a प्लस बी होल स्क्वायर. कभी ये सम उल्टा से भी दे सकते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किया, बट आप अनदर सम देखिए वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड एक्स माइनस 1 बाई एक्स. तो इसे कैसे कर सकते हैं देखिए, बड़ा ही आसान है, आसानी से इसे किया जा सकता है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 गिवन है. अब आपको एक स्टेप याद रखना है, अगर आपको एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालना है तो आप दोनों तरफ प्लस 2 कीजिए. इन इक्वेशन आपको दोनों तरफ प्लस 2 करना है, और अगर x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है तो आपको दोनों तरफ माइनस 2 करना है. सो आई हैव डन व्हाट प्लस 2 बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट x प्लस 1 बाई एक्स. अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 27 प्लस 2 इज 29. सो आई गॉट x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज 29. So what will be the value of x plus 1 by x? It will be root over 29. So इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. और अगर सोचिए यही क्वेश्चन x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है तो मैंने कहा आपको ये प्लस की जगह माइनस 2 लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 का रूट आएगा दैट विल बी 5. दैट इज x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं. तो ये दो आइडेंटिटीज हम लोगों ने देखा. लेट्स सी वन मोर आइडेंटिटी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब इसको हम लोग लगा के देखें एक सम में, और आपको पकड़ में आना पड़ेगा जो ये आइडेंटिटी इस केस के लिए एप्लीकेबल है. तो आप लोग देख सकते हैं 9m स्क्वायर को हम लोग 3m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. सिमिलरली 4n स्क्वायर को हम लोग 2n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया. अब हमको क्या करना है, एक बार दोनों टर्म को प्लस करना है. सो हम लोग क्या लिखेंगे 3m प्लस 2n एंड नेक्स्ट वी हैव टू डू व्हाट, दोनों टर्म को माइनस करना है. सो व्हाट वी विल राइट 3m माइनस
2n. So this is the identity a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. तो इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर बेस्ड सम आता है जो हमें देखने से पता चलना चाहिए कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकता है. लाइक 105 को हम लोग 100 प्लस 5 लिख सकते हैं और 95 को हम लोग 100 माइनस 5 लिख सकते हैं. तो हम लोग देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया. तो रिवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 100 होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर. तो 100 का होल स्क्वायर कीजिए, 2 0 विल बिकम 4 0 एंड 5 का स्क्वायर इज 25. इसे माइनस कर देंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो इस तरह के आइडेंटिटीज बेस्ड सम्स को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक तरह के एग्जाम में ये आता है. लेट्स सी वन मोर आइडेंटिटीज. अभी तक हम लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर निकाला, बट हियर यू कैन सी it may be given to find a plus b plus c whole square. That means here 3 terms are there. So what is the formula? It is a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice ca. तो अगर इसको हम लोग लगाएं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इस समय मैं लगा दूं तो ये a हो गया मेरा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म. तो पहले तीनों टर्म का स्क्वायर करना है, दैट इज 9x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस योर लास्ट थर्ड टर्म इज z होल स्क्वायर. फिर क्या लिखना है, प्लस 2 लिखे मैंने, देन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. सो हम लोग का फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 9x है, इंटू सेकेंड टर्म हम लोग का 2y है, देन प्लस 2 इंटू दिस टाइम सेकेंड एंड थर्ड टर्म, दैट इज 2y इंटू z, एंड देन अगेन 2 एंड दिस टाइम थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, दैट इज z इंटू 9x. तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं. लेकिन इसी सम में अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या करें. सो नो नीड टू वरी, आप लोग पहले तीनों टर्म का स्क्वायर कीजिए और जो इस टर्म के साथ माइनस है उसे ब्रैकेट में देके लिख दीजिए. सो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस 2y होल स्क्वायर लिखा, यहाँ मैंने माइनस 3z होल स्क्वायर लिखा. सिमिलरली यहाँ पे मैंने प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज x, सेकेंड टर्म माइनस 2y है तो इसे ब्रैकेट में दे देंगे. सिमिलरली प्लस 2 यहाँ पे सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. इसे अगर इंटू किया जाए तो हम लोग को रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. तो माइनस रहने से हमें ऊपर वाला ही आइडेंटिटी लगाना है, जस्ट माइनस वाले टर्म को ब्रैकेट में लिख देना है. एंड फाइनली जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा. दैट इज x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करने से पॉजिटिव भी हो जाता है, 2y स्क्वायर इज 4y स्क्वायर, 3z होल स्क्वायर इज 9z स्क्वायर. हियर एज आई टोल्ड प्लस माइनस इज माइनस, 2 2 जब 4xy, हियर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 2 जब 4 4 3 12yz, हियर अगेन माइनस प्लस माइनस, 3 2 जब 6zx. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो इन दिस क्लास I have discussed 4 identities. I hope all these identities are clear to all, and in the next class I will discuss more identities which is important for all type of examinations. So thank you for watching and keep supporting my channel Maths Guru Ojha. Thank you.